start the video and आपको टाइटल से ऑलरेडी पता लग ही गया होगा that I'm gonna be talking about every single step and it's gonna be so detailed in this video. जो बिगनर्स हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता, जो स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप को, उनको नहीं पता है कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है. सो आई एम गोना टेल यू गाइस ईच एंड एवरीथिंग कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने मेकअप को धीरे धीरे प्रैक्टिस से बिल्ड कर सकते हैं. स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड आई एम गोना बी टॉकिंग यू गाइस in a very detailed manner. So without wasting any more time, let's just directly dive into the video. And before we do that, make sure that you subscribe to my channel if you haven't. So let's just start with the video. चीज़ आती है कि आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. मैं अभी के लिए यूज़ कर रही हूँ ये एल्फ का मॉइस्चराइज़र. आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस आई थिंक 7 to 8 months now. This has been a game changer for my makeup. You just need a really good moisturizer. ओवर मॉइस्चराइज करना भी आपके मेकअप को पील ऑफ करता है एंड आपके मेकअप को अपनी जगह से हटाता है. सो यू माइट हैव सीन लाइक बहुत सारे ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे या फिर फोटोज़ देखे होंगे जिसके अंदर जगह जगह से स्पेशली नोज से मेकअप पील ऑफ हो जाता है. उसका रीज़न यही होता है कि अगर आपने स्किन को ओवर मॉइस्चराइज करा है तो आपका मेकअप वहाँ से हट जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस को हाइड्रेट करना है बट इतना ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है कि वो जगह ही छोड़ दे. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सो नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर का. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपने फेस पे यू जस्ट वांट टू यूज़ द प्राइमर और यू जस्ट वांट टू गो विद द मॉइस्चराइजर, दैट्स इट. सो I typically don't apply the primer. Just for this video only, I'm using this ELF. This is a Power Grip Primer, 4% niacinamide. This is the best primer that I can recommend you right now, and the second one would be the from Milk. So first one is this one. This is the packaging, as you can see, and it is so good. I mean, you can just apply wherever you have large pores, like I have on the cheeks and on my nose area and little bit here. So what you have to do, you don't have to rub your primer, you have to press it into your skin. So make sure that the primer is going into your pores and it just creating a smooth canvas for you. So you can see that my pores are not that much visible now. You can see that it is so good. Even you can see this, it just gonna hold the primer, so there is no chance that it's not gonna hold your makeup. Next tip that I want to give it to you guys. So if you have really heavy pigmentation on your face and you are suffering from lot of dark circles and discoloration on your face, like there are a lot of spots on your face which are not covered, foundation भी लगा लेते उसके बाद भी they are not covered. So what you can do, use the color corrector. But if you don't wanna go with the color corrector, you can definitely go with the concealer. So you have to take little bit of thick and heavy concealer. I'm using this one. It's from She Glam. You can try any concealer, any spot concealer that you have in your mind. I would recommend you go for the NARS one. That is really great, the spot concealer. So I don't have that, so I'm gonna be working with this one. So what you can do, just take that back of your hand like this. It's a really thick concealer, very full coverage. Flat brush, something like this, and wherever you have the discoloration and the spots on your face, just apply there only. You don't have to touch your entire face, just apply that area only. Let's suppose I want to cover this, like these are my tiny spots which I want to cover like this. So like this. Now you have to leave this alone, you don't have to touch it. Just leave this and you can do whatever you want to do. You can make your eyebrows. You have to let it sit for approximately 2 to 3 minutes or even more if you have the time. What it's gonna do, ये आपके फेस पे ड्राई हो जाएगा कंसीलर. जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे तो जो जितने भी नीचे के मार्क्स होंगे ना वो आपके विजिबल होंगे ही नहीं. So it's a really great technique that you can follow. I have learned it from like different influencers, and I thought I just want to share it with you guys because many of us are not aware of this. So if you don't have the color corrector, you can go with the concealer. Should be
similar to your tone, like your skin tone, or one shade lighter than your skin tone. Once you have applied this, now I'm gonna do the eyebrows. It's not always necessary कि आपको अपनी eyebrows को सिर्फ eyebrow gel से ही कर सकते हो. Like I am using this one. It's from I think 4 or 5 year old, and this is my all-time favorite Anastasia Beverly Hills eyebrow gel. But you can use your eyeshadows as well. So if you have similar like these kind of eyeshadows similar to your eyebrow hair colors, then you can go with the eyeshadows as well. They are really really good. You can use your eyeshadows as well. I'm using this black and brown shade of eyeshadow on my eyebrows, and I like to go with a very light handed. So now ये वो टाइम नहीं है अब कि हम 2016 नहीं चल रहा. मेकअप इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, बट we have to go according to the trend and time as well. So you have to go very 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 light on your eyebrows. You don't want to look them really, your eyebrows should look like really natural, and you have to go with a very light handed. And as you can see, these are looking really really natural. यूज़ कर रही हूँ ये कोसास का eyebrow gel, and I'm just gonna comb them really really nicely so that they're gonna stay on place all day. I want them to look really really natural, so I'm just following the shape of my eyebrows. Look at my eyebrows, they look so natural. So that is something you have to keep that in mind if you are starting your makeup very first time. Always keep your eyebrows really natural, and do not go with the heavy handed eyebrows. Let's just start with the eyes now. So I'm taking the concealer and I'm gonna be carving my eyes. अपनी आइज के लिए कुछ भी ले सकते हैं, शेडो बेस भी ले सकते हैं, कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन टोन का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप हैवी आई शेडोज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर यही करना है कि आपको अपनी आइज़ को अच्छे से प्रेप करना है. अगर आपके आइज़ के ऊपर कंसीलर या बेस नहीं होगा तो आपकी आई शेडोज़ अच्छी नहीं दिखेंगी. So you have to keep that in mind. You can see that it instantly brighten the area. जो भी डिस्कलरेशन होती है आपके आईज पे, अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो आपके आई शेडोज़ के कलर अच्छे नहीं दिखेंगे. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. जब आपके आईज पे कंसीलर लग जाएगा, पाउडर ले लो. मैं ये हुडा का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, एंड यू हैव टू सेट योर आईज विद द पाउडर. मैं आपको सबसे सिंपल आई शेडो लुक करके दिखाऊंगी, एंड जो आप आई थिंक वेरी इजीली कर लेंगे. अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी न्यूट्रल पैलेट होगी, तो इस तरीके की अगर उसमें टोन है तो आप ये मेकअप को इजीली क्रिएट कर सकते हो, एंड इट्स गोना लुक रियली रियली नाइस. तो अगर आप बिगिनर हो, आपको आई शेडोज़ पिक करना नहीं आता कि आप उनको कैसे ब्लेंड कर सकते हो, आप कैसे आई शेडो को पिक कर सकते हो, फर्स्ट कलर कौन सा होना चाहिए, आई एम गोना टेल यू गाइज इन दिस वीडियो एवरी सिंगल स्टेप that I'm gonna be following. So let's just start with that. साइड में टेप्स भी यूज़ कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको टेप यूज़ करनी है कि नहीं करनी है. सबसे पहली चीज़ तो इस पैलेट के अंदर आपको क्या देखना है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइट शेड कौन सा है, वो आपको पिक करना पड़ेगा इस वाली पैलेट से. सो अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को जो सबसे लाइट शेड दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है. इस टोन में अगर मैं जाती हूँ तो सो ये वाला आप देख रहे हो, ये शेड सबसे लाइट है. So what you can do, just pick this color. वाला कलर उठाऊंगी. This is the lighter shade. इसको यहाँ रखना है and just start. कैसे आपको करना है आप देख सकते हो. थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा आई के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजिशन शेड है तो ये थोड़ा सा लाइट शेड होगा. आप स्टार्टिंग में अपने ब्रश को कहीं से भी पकड़ सकते हो. इफ़ यू फील कंफर्टेबल कि आप यहाँ से पकड़ रहे हो, बस आपको ध्यान क्या करना है, तो अपनी आई शेडोज़ को डायरेक्टली पेन से लेकर यहाँ से उठाया और यहाँ नहीं लगाना है. आपको हमेशा उसको डस्ट ऑफ करना है. कोशिश करनी है कि उसमें कम से कम प्रोडक्ट रहे और कम से कम उसको पेन पे आप टच करो. टेलर को लिया, हमेशा डस्ट ऑफ दिया एक्सेस, या फिर कोई अपने पास एक टॉवल रख लो, उसके ऊपर हमेशा डस्ट ऑफ करो. ये लिया, यहाँ मैंने प्लेस किया. इस तरीके से मुझे करना है इसको. इस तरीके से तो आप अपने हाथ को चला ही सकते हो ना. सी, मैं आपको हाथ पे करके दिखाती हूँ. ऐसे इस तरीके से करना है जिससे कि आपका पूरा का पूरा ब्रश टच हो रहा है और सर्कल में घूम रहा है आपका ब्रश, बहुत लाइट हैंड से.
मैं फिर से लूँगी, डस्ट ऑफ करा, इस तरीके से किया। अब ये आपके आईज के ऊपर, दोनों के ऊपर ट्रांजिशन शेड लग चुका है। अब आप क्या करोगे, इसी के अंदर आपने ये वाला शेड पहले पिक करा था, इसी के अंदर अब आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा डार्कर शेड उठाने की कोशिश करोगे। तो इसी टोन में अगर आप इसको भी उठाओगे तो भी चलेगा, इसको उठाओगे तो भी चलेगा। सो मैं ये कलर पिक कर लेती हूँ एंड प्लेस इट। आपको आउटर पे ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए, इसीलिए हम अपने ब्रश को सबसे पहले आउटर पर ही रख रहे हैं एंड वी आर ब्लेंडिंग इट। अब हमने ये दोनों के दोनों शेड अप्लाई कर लिए। नाउ वी गोना गो विद लिटिल बिट मोर डार्कर। अब हम थोड़ा सा और डार्कर शेड की तरफ जाएंगे। सो मुझे सबसे ज़्यादा डार्क शेड यही दिख रहा है इसमें। सो आई एम गोना गो विद दिस कलर। सेम चीज़, मैं इसको अपने आउटर पे पहले प्रेस करूँगी, अच्छे से अपना कलर डिपॉजिट कर दूँगी यहाँ पर जितना भी मुझे चाहिए एंड देन आई एम गोना मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे उसको इनर की तरफ लेकर आऊँगी, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम जो आपका पहला कंसीलर ब्रश था, इसी तरीके का फ्लैट ब्रश ले लो एंड आपको करना क्या, वेरी लाइट हैंडेडली आपको बस यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे दिखाना है कि आपने बहुत लाइटली। तो इससे होगा क्या, इस कंसीलर ब्रश से जो भी आपके इनर कॉर्नर्स में थोड़ा बहुत ये डार्क शेड या बाकी की आई शेडोज आ गई होंगी, वो सारी की सारी आप इससे फेड आउट कर सकते हो इस तरीके से। ये कर लोगे, now you have to find the lighter shade in this. So I am really tempting इस शेड के अकॉर्डिंग ये वाला अगर हम इनर पोर्शन में डालेंगे तो आई थिंक इट्स गोना लुक गुड। और हम ये भी डाल सकते हैं, ये भी लाइटर शेड है। सो इट्स टोटली अप टू यू आपको कौन सा शेड डालना है। सो आई विल गो विद दिस वन, दिस इज़ अ ग्रे कलर। ये वाला ग्रे कलर मैंने लिया, डस्ट ऑफ, एंड आई एम गोना बी अप्लाइंग दिस इन माय इनर कॉर्नर्स राइट हियर, इस तरीके से। नाउ इफ़ यू थिंक कि आपका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट लग रहा है, वापस से इसी सेम कलर के ऊपर जाओ जो आपने डार्क कलर उठाया था एंड जस्ट अप्लाई दिस अगेन इन योर आउटर। सो यहाँ पर भी आप अपनी आइज़ को छोड़ सकते हो, बट यू वांट एक्स्ट्रा ड्रामा, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी शिमर उठा सकते हो। शिमर में आप इस पैलेट से भी ले सकते हो कोई भी शिमर, ये बहुत सुंदर लग रहा है। गोल्ड पे भी जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, इस पे भी जा सकते हो। सारे कलर्स इस पे अच्छे लगेंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि आपने डार्क बेस रखा है। तो जब आपका बेस डार्क होता है तो आपके शिमर्स ज़्यादा अच्छे से निकल कर आते हैं। ऑलवेज ऑलवेज यू विल नोटिस कि जिनका बेस डार्क होता है उसके ऊपर अगर आप आई शेडोज लगाओगे तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। सो यू कैन गो ऑल आउट, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई एम गोइंग वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल लुक that you can I think create very easily. What you can do, applying the eyeliner, you can take the gel eyeliner, you can take the liquid liners. I'm using liquid one. You can use the pen eyeliner. I don't know, I just find these kind of eyeliner, this is a really really old eyeliner, it's from Lakme. You must like, ये सबके मेकअप बैग में ज़रूर रहा होगा एक ना एक टाइम पर। आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली रियली लाइक इट। आपको लगता है आईलाइनर लगाने में आपका हाथ बहुत हिलता है, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट होल्ड योर एल्बो, किसी ऐसी जगह पे रख लो, टेबल पे या किसी चीज़ पर, जिससे कि आपका हाथ ज़्यादा मूव ना हो। सो व्हाट यू कैन डू, सबसे पहली चीज़ है यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरीके से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ये कि जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका जो मिडल होगा लाइन का, उससे आपको ऐसे एक ट्राइंगल बनाना है। वंस ये ट्राइंगल डन हो गया, इस ट्राइंगल को आपको फिल करना है एंड देन धीरे धीरे अपने फिंगर को ऐसे टच कर लो एंड धीरे धीरे आपको ऐसे आगे बढ़ना है। जितना आप ऐसे स्लांटेड रखोगे ना, उतना आपका हाथ कम हिलेगा और आईलाइनर अच्छे से लगेगा। अपने आप आईलाइनर को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखोगे, उतना ही आपका लाइनर बिगड़ेगा। जितना आप स्लांटेड रखोगे ऐसे, उतना सही लगेगा। तो आपका आईलाइनर हो गया डन, लेट इट ड्राई, इसको सूखने दो थोड़ा, देन यू कैन कर्ल योर लैशेस। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको लगता है कि लाइनर आपके लैशेस में लग गया है, सबसे पहले उसको वाइप कर लो, क्योंकि जब भी आप कर्ल करोगे तो वो उस पर लग जाएगा और आपका मेकअप खराब होने का डर है। ऑलवेज वाइप ऑफ। मस्कारा ले लो,
करंटली फेवरेट जो है मेरा वो दो मस्कारा है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे. वन इज़ दिस हुडा एंड सेकेंड वन इज़ फेंटी. It just looks so good. सेकेंडली मेकअप में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. अगर आप बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हो मेकअप को, आपको कुछ भी नहीं आता मेकअप में, जस्ट गो रियली रियली स्लो. डोंट बी लाइक कि जल्दी 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 फटाफट ख़त्म करना है. इट्स नॉट गोना वर्क. आपको बहुत धीरे से आराम से हर चीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा. देन इट्स गोना वर्क. You can see the difference in my eyes. It just looks so good. You can do just take any makeup wipe. Now, whatever the fallout that has happened, make sure that you are taking it off. क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं हटाओगे तो वो आपके बेस में दिखेगी. हमेशा अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है आफ्टर दैट. तो मेरे फेस पे ज़्यादा फॉल आउट हुआ नहीं है क्योंकि हमेशा आप अपने आई शेडोज़ को डस्ट ऑफ करोगे तो फॉल आउट कम होगा. डायरेक्टली गो टू दी फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप बाय मारियो का. दिस इज़ स्किन लाइट फाउंडेशन एंड आई थिंक 2 पम्प्स आर इनफ फॉर मी. सो अगर आप स्टार्टिंग में मेकअप कर रहे हो, आपको मेकअप में कुछ भी नहीं आता, आप बिगनिंग में सीख रहे हो, डोंट गो विद द हैवी हैंडेड. ऑलवेज गो very light hand. What you can do, just take this kind of brush or you can apply with your finger as well. It's totally up to you. What you can do, just apply kind of this. इस तरीके से आपको पता भी लगेगा कि कितना फाउंडेशन आपने लगाया है. लाइट जो प्रोडक्ट आपका लगेगा वो आपके फॉरहेड पे लगेगा बिकॉज एज यू नो कि फॉरहेड पे हमारी सबसे ज़्यादा लाइंस, फेशियल लाइंस बनती हैं. So we have to keep that in mind as well. And we're gonna leave our under eyes as well because we don't want our eyes to be creasing. एंड अगर आपको क्रीजिंग को अवॉइड करना है अपनी अंडर आइज़ के नीचे, मेक श्योर कि आप सबसे कम प्रोडक्ट अपने अंडर आइज़ के नीचे लगा रहे हो. यू कैन टेक द ब्यूटी स्पंज लाइक दिस वन. इस तरीके से कोई भी एक स्पंज ले लो. ड्राई यूज़ नहीं करना है. ऑलवेज मेक श्योर दैट इट इज़ वेट एंड अच्छे से वाटर को स्क्वीज करके निकाल लो इसका. And then just apply in a dabbing motion. But if you are comfortable with the brush, then you don't have to swipe it like this. You have to pat it like this. इस तरीके से आपको पैटिंग मोशन में जाना है. ड्रैग नहीं करना है. अगर आप ड्रैग करोगे it's not gonna look good. Done with the brush. Now you can take the beauty sponge and just dab really really light-handed. सो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा एंड आपका बेस स्मूथ दिखेगा. ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन ऑन योर ईयर्स. अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा रेड दिखेंगे आपके ईयर्स एंड इट्स नॉट गोना लुक गुड. जैसे नाउ यू कैन सी माई बेस. इट्स गोना लुक रियली रियली स्मूथ. तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कंसीलर. ये मुझे एक्चुअली फ्री प्रोडक्ट मिला था सफोरा में. सो दिस इज़ फ्रॉम हाउस लैब. मेरे पास उनका फाउंडेशन भी है. सो आई थॉट आई जस्ट गोना यूज़ दिस ओनली एज माई कंसीलर because it has a lighter shade as well. So this one I'm gonna use. I'm gonna be applying this here only and I'm carving my eyeliner as well. सो मैंने यहाँ पे कंसीलर अवॉइड कर दिया. रीज़न बीइंग कि जब ये ब्लेंड होकर यहाँ तक आएगा और ये वाला ब्लेंड होकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेगा. दैट्स लाइक समथिंग यू कैन कंसीडर if you are even a beginner. I'm going to be taking this kind of very dense brush. It's gonna push the product into my skin. Again, first start with the dabbing motion and then go with the sweeping like this. Dabbing and sweeping. I'm gonna be applying this bronzer, liquid bronzer. आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. ऑलवेज मेक श्योर कि आपको लेस प्रोडक्ट लेना है एंड देन धीरे धीरे उसको बिल्ड करना है. इफ़ यू थिंक कि ये कम है या इसमें और ज़्यादा ऐड हो सकता है देन ओनली गो फॉर इट. अदरवाइज़ हमेशा कम और लेस प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो
कॉन्टोर प्लेसमेंट की भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं कि आपको अपने फेस को कैसे दिखाना है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा गोल है, ओवल है, तो मुझे हमेशा रहता है कि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। सो लिफ्टेड के लिए मेरे यहाँ पे जो ये है, मेरी ये चीक बोन ये वाली है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो मेरा कान का पोर्शन है ना, ईयर का, मुझे यहाँ से अपने ब्रॉन्जर को या कॉन्टोर को मुझे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, इस आई के सॉकेट के यहाँ पर, जहाँ मेरी आउटर कॉर्नर है आई का। सो एक मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, एक यहाँ पे, दैट्स इट। बाकी का आपका फॉरहेड है, अगर आपका फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है दैट्स टोटली फाइन। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, little bit in my inner corners like this, and now I'm taking this kind of brush. So again टैपिंग मोशन में करना है, इस तरीके से डैब डैब करना है। ब्रश को कोशिश करनी है जहाँ आपने अप्लाई किया ना उससे ऊपर ही आपको रखना है, नीचे नहीं लाना, अदरवाइज नीचे लेकर आओगे तो लिफ्टिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। कैन सी दैट इंस्टेंटली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा लिफ्टिंग लग रहा है। नाउ यू कैन सी इट्स ऑल ब्लेंडेड। इट्स टाइम टू दी ब्लश नाउ। सो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वन इज़ फ्रॉम अर्बन डिके, एंड मैं करूँगी क्या, मुझे इसको थोड़ा सा एक्चुअली कंसीलर के अंदर मिक्स करना है। बट अगर आपको थोड़ा सा बबली सा लुक चाहिए अपने ब्लश में, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिंक शेड का ब्लश ले लो एंड उसको अपने कंसीलर के अंदर मिक्स कर लो, दिखेगा कुछ कलर बनेगा। नाउ जस्ट अप्लाई दिस। नाउ आई एम टेकिंग द सेम ब्रश एंड जस्ट अप्लाई अगेन, सेम टेक्निक, डैबिंग मोशन में करना है एंड ज़्यादा नीचे तक नहीं लेकर आना है, अदरवाइज़ वो चीक्स आपके ड्रूपी लगेंगे अगर आपका मेरी तरह फेस है तो। नाउ इट्स टाइम फॉर दी पाउडर, क्योंकि हमने सारे के सारे अपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने पाउडर से फेस को सेट करना है कि नहीं करना है, बट अगर आप ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेट करो। एंड मैं सबसे बेस्ट आपको पाउडर रिकमेंड करूँगी, दिस वन इज़ फ्रॉम हुडा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप बहुत अच्छा मेकअप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत अच्छी लगे तो आप स्टार्ट कर लेना इससे। ये आप अफोर्डेबल में जा सकते हो, एल्फ का ये भी बहुत अच्छा है। मेबलिन का फिट मी बहुत अच्छा पाउडर है जो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक sucker for this product. This is like amazing, game changer. So always dip your puff एंड मेक श्योर कि कोई भी उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। अगर आप बेकिंग नहीं कर रहे हो, बेकिंग का मतलब होता है कि जैसे आप बेकिंग करते हो ना नॉर्मल लाइफ में, फूड के अंदर बेकिंग करते हो, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर जाता है। सो अगर आप अपने अंडर आइज़ को चाहते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखें और ज़्यादा क्रीजिंग ना हो, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए बेकिंग करनी पड़ती है। बट अगर आपको है कि आपको ज़्यादा लाइंस नहीं आती, देन यू कैन डेफिनेटली अवॉइड द बेकिंग। शो यू गाइस, सबसे पहले इस तरीके से कर लो एंड चेक करो कि आपके अंडर आइज़ के नीचे कोई क्रीजिंग तो नहीं है। वापस से जाओ, जो आपने कंसीलर अप्लाई किया था उसको वापस से ब्लेंड करो, क्योंकि थोड़ी बहुत डेफिनेटली आपको क्रीजिंग आ गई होगी अब तक। डोंट मूव योर फेस, जस्ट अप्लाई इन अ प्रेसिंग मोशन लाइक दिस। इस तरीके से आप अपने फेस के अंदर, अंडर आइज के नीचे इस प्रोडक्ट को प्रेस करो ऐसे। मुझे अपने पूरे फेस को सेट करना पसंद है बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन में आती है बट ऑयली भी रहती है बहुत बार। सो आई एम गोना भी, इस तरीके से आप अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर सकते हो। नाउ आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ ब्रश एंड जो भी एक्सेस में प्रोडक्ट है अंडर आइज के नीचे उसको आप इस तरीके से रिमूव कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ द हाइलाइटर। आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए मेकअप के। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये जैकलिन हिल का हाइलाइटर है, ये बहुत माइल्ड है, बट मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी पर नहीं लगाओ, क्योंकि हाइलाइटर मोस्टली आपके टेक्सचर को इन्हेंस करते ही करते हैं। यू कैन सी इट इज़ सो गुड। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द आईज नाउ। सो आइज़ के लिए ऑब्वियसली जो कलर्स हमने ऊपर यूज़ किए थे वही हम अपने लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करेंगे। Eyes are done. Now I have to apply the liner.
totally up to you. You can skip it or you can go for it. So the technique that I was talking about to highlight your inner under eyes area, what you can do, just pick up this kind of small brush, little bit of cream shade, just dust off the excess and apply this in your inner corners like this. You can instantly see this is little bit brighter than this one, so it's a really great way. Let's just apply the lip liner. I'm using this lip liner from ELF. I'm gonna take a little bit of concealer. I'm gonna be applying this. Blend this with your finger, and I'm gonna be taking this She Glam gloss. And let me guys show you my full face of makeup. I'm gonna be coming back in 1 minute. This is the final look. I hope you like this video, and if you do, don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share with anyone friend at least. So I don't know, I just love how this makeup turned out. This is so good. I just love this lip combo. It just looks so good. So if you have any questions, any recommendation, any suggestion, any look that you want to see on my page, definitely comment down below. I will be gonna make the video on that, and I hope you will keep that in mind, whatever the techniques I told you and how you can start your makeup journey. You should definitely, because there is a space for everyone in this industry. So if you are like, if you like, you can definitely give it a try. It doesn't like, अगर आपको पसंद नहीं है या आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो आपसे ज़रूर होगा. And yeah, I'm gonna see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.